morning, students. Today I am going to teach you a poem that is Amanda, written by Robin Klein. Robin Klein was an Austrian author. She was famous for her writings for young children. Okay? So, in this poem, the poet Robin Klein wants to attract the attention of the readers how a child is interfered in her each and every activity by her mother. Generally, when you are interfered in your work, you feel upset. Though you know that your parents are your well wishers. Your parents always think about the welfare of yours. Still, you feel upset. I don't want to blame you. It is the nature of human being. In my previous video, I had discussed when there is any reaction over your action, you feel upset. You don't like it. In the same way, here there is a child named Amanda who is interfered by her mother in her work. When her mother finds fault in her work, she interferes and suggests her to mend it, to reform it, to change the way of activity. But she does not take it happily. She does not take it easily. She thinks my mother is interfering in my work. It is the violation of her right. She thinks so. Every child feels that he or she is controlled and instructed not to do one thing or another. Students, you know, in your school, your teachers sometimes interfere in your activity. At home, your parents interfere in your activity, and at that time, you feel upset. You too may feel that your freedom is curtailed. You take it in a different way. आप सोचते हैं कि आपका अधिकार का हनन किया जाता है. Your freedom is violated. It is the violation of your freedom. But students, it is your fault. You must not think that the interference of your parents is the violation of your right. The interference of your teacher is the violation of your right. You must not think it. Because whatever they think, whatever they do, only for your benefit. You will be benefited today or tomorrow. So, we will start now. The first stanza. Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. Amanda word is repeated. Repeatedly, this word has been used in the first stanza of this poem. It means mother calls Amanda repeatedly and suggests her not to do the wrong things, not to follow the wrong habits, bad habits. So, what does mother suggest her? Don't bite your nails. नाखून को मत काटो. Some children are in the habit of biting nails. आप लोग दांत से क्या करते हो? नाखून काटते हो. And it is not a good habit. It is a bad habit. कभी कभी मॉर्निंग असेंबली में आप लोग स्कूल में भी जब when it is the time to check your nails, some students are in the habit of biting their nails.
जब नेल चेक होता है, टीचर्स चेक करते हैं, आप लोगों ने नाखून को काटते हो। सो इट इज अ बैड हैबिट, बट जब आपको समझाया जाएगा आपको बुरा लगता है। सो यहां पर मदर समझाती है, डोंट बाइट योर नेल्स, नाखून को मत काटो दांत से। अमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स, हंच मीन्स बेंड, झुक करके मत बैठो। क्योंकि इन आई थिंक इन क्लास 3 और 4 आप लोग करेक्ट पोस्चर के बारे में पढ़ते हो, हाउ टू सिट स्ट्रेट, स्टैंड स्ट्रेट, सीधा खड़े रहना, झुकना नहीं है। क्योंकि अगर आपका पोस्चर सही नहीं होगा then it will be painful for your body. You can't understand at this time because your mind is not matured. You don't understand what is right and what is wrong. But time will come in future when you will be in the post of your parents or teacher. जब खुद आप टीचर बन जाओगे या पेरेंट्स बनोगे, then after you can realize, आपको एहसास हो सकता है, एंड यू विल रियलाइज दैट व्हाट माई फादर सजेस्टेड, व्हाट माई मदर सजेस्टेड वाज 100% करेक्ट। सो यहाँ पर मदर क्या कहती है कि डोंट हंच योर शोल्डर्स मीन्स डोंट बेंड योर शोल्डर्स। अमेंडा, स्टॉप दैट स्लॉचिंग, स्लॉचिंग मीन्स सिटिंग इन ए लेजी वे, आलस्य से बैठना, हमेशा सीट आइडल, डोंट सीट आइडल एंड सीट अप स्ट्रेट, सीधा बैठो। सो इन दिस वे इन द फर्स्ट स्टेंजा मदर सजेस्ट्स अमेंडा। तो सेकेंड में क्या होता है ना, अमेंडा ने रिएक्ट करती है। अमेंडा ने क्या करती है ना, अपना एक्सप्लेन करती है, रिमार्क्स। आफ्टर ईच स्टेंजा देयर इज द रिमार्क ऑफ अमेंडा एंड दैट रिमार्क इज कॉल्ड पैरेंथेसिस। इसको क्या कहते हैं, पैरेंथेसिस। व्हाट इज पैरेंथेसिस? पैरेंथेसिस इज ए रिमार्क that is added to a sentence, often to provide an explanation. Okay, so after each stanza there is parenthesis, यानी इसमें उसकी रिमार्क है। जब माँ ने सुझाव देती है तो व्हाट इज द रिमार्क ऑफ अमेंडा, तो बच्ची का रिएक्ट क्या होती है, वो कैसे लेती है, वेदर शी एक्सेप्ट्स इट और शी रिएक्ट्स ओवर इट, उस पर वो एक्सेप्ट करती है या उस पर अपना रिएक्शन, प्रतिक्रिया प्रकट करती है। सो देयर इज ए लैंग्वेज, लैंग्वेज मीन्स रिलैक्स्ड। एमरल्ड सी, एमरल्ड मीन्स ग्रीन कलर सी, where the sole inhabitant, जहाँ soul means alone, अकेला, inhabitants means निवासी, is me. So over the action of mother, what is the reaction of Amanda? Amanda सोचती है कि काश मैं एक बहुत बड़ी सागर में होती। I wish I were in an emerald sea, a green colored sea, where I would be alone, no one would be along with me, मेरे साथ कोई नहीं होते, मैं बिल्कुल अकेली होती। अब मरमेड, मरमेड मीन मत्स्यांगना, the lower posture, the bottom part is just like a fish and the top part is just like a human being। तो जिस तरह एक मत्स्यांगना, ये क्या है ना, एक फेरी, एक इमेजिनेशन है, ये अनरियलिटी है, देखिए कल्पना है। हम लोग फेरी टेल्स में पढ़ते हैं कभी कभी मत्स्यांगना के बारे में। सो काश में एक मरमेड होती, तो ये जो पैरेंथेसिस में वो रिएक्ट करती है, वो अपना रिमार्क्स देती है, ये आई विश आई वेयर ए मरमेड, काश में एक मत्स्यांगना होती, एंड लिव इन an emerald sea
और एक ग्रीन कलर का सी में रहती। आई वॉज कम्प्लीटली एलोन, मैं बिल्कुल अकेली होती। नो वन वुड इनहैबिट विथ मी, इनहैबिट मतलब निवास करना, रहना, मेरे साथ कोई नहीं होते। एंड आई वुड ड्रीफ्ट, मूव सॉफ्टली, मूव हैप्पीली, कैरिड स्लोली एंड ब्लिसफुल, एंड आई लेड अ वेरी हैप्पी लाइफ। इट मीन्स she does not accept the suggestion and remarks of her mother. वो अपने माँ के सुझाव को एक्सेप्ट नहीं करती है। उनके एक्शन पर इसका रिएक्शन होती है कि काश ये मेरी माँ मुझे क्यों बातों में इंटरफियर कर रही है, मुझे बोल रही है। तो काश मैं एक मत्स्यंगना होती, अकेली रहती विशाल सागर में जहाँ कोई नहीं होते, तो मुझे बोलने वाले कोई नहीं होते। इट मीन्स Amanda does not like the suggestion, the advice of her mother. Clear? First stanza, then second stanza. Stanza 2. फिर मदर क्या करती है, सजेस्ट क्या करती है? जैसे कि आप लोग के पेरेंट्स पूछते हैं होमवर्क कंप्लीट कर लिए, तो इसी प्रकार माँ पूछती है डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा? अमेंडा होमवर्क कंप्लीट हो गया। डिड यू टीडी योर रूम? टीडी मतलब क्लीन, साफ सुथरा करना। आपका रूम आप साफ की हो अमेंडा? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज, मैंने बोला था ना, आपको बोली थी आपको अपने शू को साफ करने के लिए अमेंडा। इसका मतलब इन द सेकेंड स्टैंजा माँ फिर पूछती है कि आपने इस काम को कर लिए हो या क्यों नहीं किए हो। सो वंस अगेन इन द सेकेंड स्टैंजा मदर सजेस्ट्स अमेंडा व्हाट टू डू एंड रिमाइंड्स हर व्हाट शी हैड नॉट डन। वो जो नहीं की थी उसको रिमाइंड करती है ये करने के लिए। सो व्हाट इज द रिएक्शन, व्हाट इज द रिमार्क? तो हर एक, मैंने बताया था कि हर एक स्टैंजा के बाद में उसका पैरेंथेसिस आता है। तो सेकेंड पैरेंथेसिस में अमेंडा क्या सोचती है? आई एम एन ऑर्फन, काश मैं एक अनाथ होती। अनाथ मतलब क्या है बेटा? विदाउट फादर एंड मदर, जब दोनों नहीं रहेंगे उनको ऑर्फन कहा जाएगा, नहीं तो फादरलेस कहा जाएगा, मदरलेस कहा जाएगा, बाप विहीन या माता विहीन कहा जाएगा। लेकिन जब दोनों नहीं रहते हैं तब उनको ऑर्फन कहा जाएगा, अनाथ कहा जाएगा। तो इस बातों पर, माँ के एक्शन पर वो उसका रिएक्शन क्या होता है? वो सोचती है कि काश मैं एक ऑर्फन होती, मेरे माता पिता नहीं होते ताकि मुझे कोई नहीं बोलते। आई वे आर एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, मैं गली में भटकती। रोम मतलब भटकना, रोम मीन्स मूव विदाउट एम, बिना लक्ष्य का भटकना, मन किया यहाँ गया, मन किया वहाँ गया। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हुस्ड बेयर फीट, मैं नंगे पैर घूमती। जैसे कि आप अगर नंगे पैर निकलते हो, आपकी मम्मी आपको सजेस्ट करती है नहीं बेटा वेयर द शूज और एल्स एनीथिंग विल प्रिक योर सोल या फुट, आपके पैर में कुछ चुभ जाएगा। तो उनको चिंता रहती है, मदर को चिंता रहती है, मदर केयर्स, मदर इज वरीड ओनली फॉर यू। लेकिन हम लोग इसको भूल जाते हैं। तो वो रिएक्ट करती है कि काश मैं अनाथ होती, मेरे माता पिता नहीं होते, मेरे बातों में इंटरफियर नहीं करते, मेरे कामों में इंटरफियर नहीं करते, मैंने नंगे पैर भी गली में घूमती भटकती। द साइलेंस इज गोल्डन, मुझे शांति ही शांति मिलता। द फ्रीडम इज स्वीट, और मुझे आज़ादी ही आज़ादी मिलता। इट मीन्स इन द सेकेंड पैरेंथेसिस अमांडा एक्सपेक्ट्स फ्रीडम। In the second parenthesis, Amanda expects silence. She does not like the interference of her mother. She does not like the poking nose of her mother. She does not like to be disturbed by her mother. That's why she wishes to be an orphan. वो कोशिश करती है, उम्मीद करती है, भगवान से दुआ करती है कि काश मैं एक ऑर्फन होती ताकि मेरे काम में कोई इंटरफियर नहीं करते। तो थर्ड स्टैंजा, फिर माँ ने क्या सुझाव देती है? डोंट ईट दैट चॉकलेट। जैसे कि आपके पेरेंट्स भी आपको बोलते होंगे
उस चॉकलेट को मत खाना, वो ज़्यादा स्टिकी है, चिपचिपा है, क्योंकि कैविटी हो जाएगा। आप लोग भूल जाते हैं क्यों क्यों बोल रहे हैं। तो फिर माँ बोलती है कि डोंट ईट दैट चॉकलेट, वो चॉकलेट को मत खाओ अमेंडा। रिमेंबर यू आर एसन, एसन मीन्स पिंपल, देखो तुम्हारा पिंपल्स हो गया है, इसको केयर करो अमेंडा। विल यू प्लीज लुक एट मी, मेरे तरफ देखो, व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, जब मैं बोलती हूँ। तो माँ ने इस तरह कहती, क्योंकि कुछ बच्चों का आदत क्या होता है, जब माँ बोलती रहेगी तो यू लुक डाउन, आप नीचे कर देते हो हेड को, आप यू डोंट केयर, यू डोंट गिव योर ईयर्स टू हर, आप ध्यान नहीं देते हो। तो इसीलिए माँ कहती है कि लुक स्ट्रेट, लुक एट मी, डोंट बेंड योर हेड, डोंट ईट दैट चॉकलेट, ड्यू टू दैट चॉकलेट you have so many pimples on your face. So these are the suggestions of mother in third stanza to Amanda. तो उनका रिएक्शन क्या होता है, अपना रिमार्क्स क्या होता है। तो थर्ड पैरेंथेसिस में क्या कह रही है अमेंडा, आई एम रैपुंजेल, काश में रैपुंजेल होती। थर्ड स्टैंजा, Rapunzel was a girl who had very long hair, who lived in a castle. वो एक किला में रहती थी और एक विच के कब्जा में थी। वो विच, जादूगरनी, डायनी, पिशाची, राक्षसी, वो एक राक्षसी के कब्जा में थी रैपुंजल। ये आप पढ़े, एक कहानी भी पढ़ सकते हो। Rapunzel was a girl who had very long hair. She was captured in a castle under the custody of a witch. तो वो केसल में क्या था ना, एक ही विंडो था, खिड़की था, और वो जो विच कैसे उनके पास जाती थी ना, उसी वो बाल को गिराती थी, उसी बाल को पकड़ करके वो केसल के मार्ग में प्रवेश करती थी। सो इट वॉज द स्टोरी ऑफ ए रैपुंजेल। इट मीन्स रैपुंजेल वॉज कंप्लीटली एलोन इन दैट केसल। रैपुंजेल वॉज कंप्लीटली एलोन इन दैट केसल, बट व्हाट हैपेंड लेटर, बाद में एक प्रिंस ने, राजकुमार ने उसी बाल को पकड़ करके केसल में आ जाता है और उनके दे फेल इन लव एंड दे मैरिड लेटर। लेकिन ये कह रही है यहाँ पर कि काश में रैपुंजेल होती, ताकि मैं किसी को एलाउ नहीं करती, मैंने किसी को, आई वुड नॉट एलाउ एनीवन जस्ट लाइक रैपुंजेल, मैं वो रैपुंजेल नहीं होती। वो तो कैसल में एलाउ कर दी थी, हमने किसी को एलाउ नहीं करती। आई हैव नॉट ए केयर, मेरे पास चिंता नहीं होता। आई हैड नो एंजाइटी, कोई चिंता नहीं होता। लाइफ इन ए टावर, रैपुंजेल वाज इन टावर and she was completely alone. Is tranquil. Tranquil means peaceful atmosphere. That is called tranquil. Tranquil, peaceful atmosphere. And rare, I will certainly never let down my bright hair. I would not hang my bright hair, long hair, because I have already told you. Only it was the way to go to her. What was the way to go to her? Only her long hair. The witch was also going to her by the help of that long hair. The prince also reached her due to the long hair. But she thinks that I would not allow anyone to come to me. I would not let it fall down. I would not let my long hair fall so that anybody would come to me. And I would live alone. It means this was the reaction of Amanda over the action of her mother. So what was the last stanza? In the last stanza, mother suggests, stop that sulking,
Sulking means bad mood. Don't be in bad mood. Amanda, you are always so moody. Moody means unstable. Your mind always flickers. You are not able to concentrate your mind. Fickle minded. So, you are moody. Amanda, try to control you. Anyone would think that I nagged at you. Nagged means harass. आज यू थिंक बच्चे सोचते हैं कि हमारा पेरेंट्स हमें नैग करते हैं, इंटरफियर करते हैं, हमें हरास करते हैं, अमेंडा, बट रियली आई डोंट नैग यू. सो it is all about this poem. It is a poem between mother and daughter. Mother time to time suggests her, but Amanda does not like to accept the suggestion of her mother. Okay students, it is all about the poem. Thank you. In my next video I would teach you the next lesson. Thank you.